So hi everyone, welcome to my channel Akshita's Utterances. So basically after a long time, I think after 1 or 2 weeks I'm posting this video because I was somewhat busy with my schedule. So basically today's I'm here with a very important video to tell you all about that. I think this video is firstly especially for all the needy parents who or all those who are just dreaming to become a real doctor and they want to just go into the medical line. This video is all for all the needy parents, and I hope that this will help you. The content will really be helpful to you to prepare well in the NEET examination, and this video is just about the chemistry exam. सो बेसिकली आई थिंक केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कहीं ना कहीं बीच में लाई करता है. मीन्स अगर आपको मैथ ज़्यादा पसंद है आप तो भी केमिस्ट्री कर लोगे, अगर आपको बायोलॉजी ज़्यादा पसंद है आपको तो भी केमिस्ट्री पसंद होता है. मीन्स अगर हमें मैथ लाइन इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है तो मोस्टली ऐसा होता है ना कि हम लोग को फिजिक्स भी नहीं पसंद होती. अगर हम इतने ज़्यादा बायोलॉजी लवर है तो हमें फिजिक्स इतनी पसंद नहीं होती. बट केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट आता है विच कंप्राइजेज ऑफ आई थिंक बोथ बायोलॉजी एंड न्यूमेरिकल पोर्शन. मीन्स कहीं ना कहीं इसमें थ्योरी भी होती है और कहीं ना कहीं इसमें the numerical portion is also there. So it's a combination of both the subjects, and I hope and I believe that it is basically a very favorite subjects of all which are just belong to the PCM group or belong to the PCB group. So this video is a very important video, and in this video I'm going to tell you about various important things that how you can prepare well for the chemistry in the NEET exam. Now you can NEET aane wala hai today. This is the January, and after about 5 or 6 months, अगर मैं 2021 की बात करती हूँ तो I think it will take about 6 or 7 months for the NEET exam to basically to be held. So it is time, and I think this is the best time for you, and I'm going to show, and I want to show some of the important books from which you can prepare, which I used during my NEET preparation और जिसने मुझे enable किया to score a very good marks which is 175 out of 180 in chemistry in NEET 2020. So I'm going to share all my strategies and all my methods which can really help you to score more in the NEET exam. So let's start. हम लोग को धीरे धीरे start करने वाले. So basically concentrate. I'm going to show you all the books that will be really helpful to you. So let's start guys. सो गाइज अभी जो बुक्स मेरे पास है, लेट स्टार्ट विद द बेसिक. हम लोग ना एक सेकेंड, वी विल स्टार्ट विद द बेसिक. हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं, मतलब धीरे धीरे वी विल गो टू द बेसिक. तो सबसे पहले क्लास 11th में हम लोग क्लास 12th में द बेसिक थिंग इज द NCERT. Firstly, you should be the NCERT lover. You should just don't see the NCERT. I think you will just go to the every portion of it. And I want to say you these are some of my NCERT books. So basically this is for the class 11th and this is for the class 12th. So basically I'm not having the part first of the class 11th which I don't forget. मुझे कहीं मिली नहीं, मैंने काफ़ी ज़्यादा ढूंढा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है ये सब चीज़ें बुक्स पढ़े हुए. इट बीन 5 or 6 months, तो मुझे मिली ही नहीं वो बुक. तो आई होप कि आपके पास ये बेसिक NCERT की बुकलेट्स होनी चाहिए. एंड आई प्रेफर यू नॉट टू रीड फ्रॉम द ऑनलाइन वर्जन, स्पेशली NCERT. मीन्स NCERT तो ऐसी होनी चाहिए कि आप लोग मीन्स एक एक चीज़ है, यू जस्ट हैव टू रीड एवरीथिंग बिकॉज दीज आर द मोस्ट बेसिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और जैसे कि मैंने अपना नीट का एग्ज़ाम दिया था 2020 में, उसे ऑब्जर्व कर कर मुझे डेफिनेटली ये लगा कि काफ़ी सारी चीज़ें तो ऐसी थी कि मतलब वो NCERT की जो चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं ना, हमें लगता है ये कैसे इंपॉर्टेंट हो सकती है, उसमें से ही उठकर आ गई थी. सो इट मीन्स अ मच, ये काफ़ी ज़्यादा मीन करती है. एंड यू शुड हैव अ ग्रेट रिविजन ऑफ ऑल दीज बुक्स. यू शुड बी रिवाइज ऑल द NCERT टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज. मीन्स एक्सरसाइज तो आपको पढ़नी है. आप लोग को मिरर में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही होगी देखने में, मैं आपको कैमरा व्यू से भी ज़रूर शो करूँगी. ये सब बुक्स आपके पास है, यू ऑल नो अबाउट दैट. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो समरी होती है आप प्लीज़ इसे ज़रूर पढ़िए. जैसे कि हम फिजिक्स में पॉइंट्स टू रिमेंबर पढ़ते हैं ना, यू मस्ट रीड अबाउट इट. और एक और इम्पॉर्टेंट थिंग, मतलब अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो हमारी जो NCERT की बुक्स होती है उसमें बीच बीच में ना कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं. These questions you must observe all these questions. I think these are very much important for you. So this was about my 11th and this is my 12th. मतलब 12th में I think एक चैप्टर मैं हमेशा कहूँगी आपका जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट होता है, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट तो आपको ज़रूर NCERT से आई थिंक यू मस्ट बी फॉन्ड ऑफ रीडिंग दैट. मतलब मैंने कितना पढ़ा था, आई नो दैट. दिस इज माई दैट P ब्लॉक एलिमेंट वाला पार्ट आप लोग देख सकते हैं कैमरा में. आई विल शो you that means these are the some of the chapters which I love the most because I like theory so much. So P block was one of my favorite chapter. Definitely इसके questions काफ़ी ज़्यादा tough होते हैं, right? So this was all about that. ये तो आपको करना ही, मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ, देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको कहीं और से भी हेल्प लेनी पड़ेगी. NCERT इज़ नॉट अनफ अकॉर्डिंग टू मी. मैंने और बुक से भी हेल्प ली थी और मैं आपको वो बुक्स भी दिखाऊंगी कि मैंने किस में से हेल्प ली थी. मैंने ये भी पढ़ा था, बट आई वॉज मोर फॉन्ड ऑफ रीडिंग सम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम सम अदर स्टफ. आई वॉज नॉट मच फॉन्ड ऑफ रीडिंग द NCERT फ्रॉम
I was not fond of reading, especially organic and that physical chemistry part from the NCERT books. So let's move to the other section of my video. So guys, now I will starting with the much heavier stuff. Now this is the modern ABC's chemistry. I just love these type of book, especially for the physical chemistry. This is my strategy and I use this book. This I prefer. This is my preferred choice. I hope you will be choosing anyone. That all depends on your hard work. Means it's not. But some important things are that I will show you from the camera version. So please just be listen about this. Means this is really helpful. मतलब आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर. Okay, I will show you. So guys, I was unable to view the camera version, so please आप लोग देख सकते हो. मॉडर्न एबीसी की बुक तो आपने नाम सुना ही होगा. दिस इज बाय डॉक्टर SP जौहर and this is for the part 1 and part 2 for the 11th chemistry and part 1 and part 2 for the 12th chemistry. So this book is actually helpful because आप जब भी कोई चैप्टर खत्म होता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो उसके बीच के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. कुछ इसमें बीच में कॉम्पिटेटिव लेवल के क्वेश्चन दिए होते हैं. They are very much important, means they are really so much helpful. At the last of video, I will show you the camera version of all these books and some important things that you should read. Now, some of the conceptual questions are given in this book. These are very much helpful, and some of the tough and tricky problems are also given this. I think I prefer these type of problems because these are very much helpful if you really want to just score good in NEET exam. Now these are some of tough and tricky problems. और हर चैप्टर के बाद ना कुछ क्वेश्चन तो नॉर्मली NCERT की एक्सरसाइजेस भी आपको दी गई हैं. उसके अलावा आपको कुछ क्वेश्चन जो है वो AIPMT के भी दिए होते हैं. सो दीज आर वेरी मच हेल्पफुल. Really means these are so much helpful. Now this is the part 1 and this is the part 2 for the 11th. Okay, that is by Dr. SP Jor. You should remember the name of the author. And now this is for class 12th. This is the class 12th part 1. Class 12 book is also very much good, but I like the most 11th version. Means 11th class का जो वर्जन था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था. इसमें कुछ कंपटीशन फाइल दी जाती है और कुछ कंपटीशन थ्योरी नोट्स भी दिए जाते हैं इस बुक में. एंड दीज आर वेरी मच हेल्पफुल. मतलब इसमें आपको जी मेंस के क्वेश्चन है, जी एडवांस के क्वेश्चन है और आपको काफ़ी सारे नीट के क्वेश्चन, AIPMT के, एम्स के क्वेश्चन दिए गए. आई थिंक यू शुड मस्ट प्रैक्टिस एवरीथिंग. दीज आर वेरी मच हेल्पफुल. मीन्स थ्योरी इज ऑल्सो गिवन सो मच. मतलब आप लोग अपने जो नोट्स बनाते हैं ना, आप लोग इन्हें यूज़ कर सकते हो ना. दीज आर काफ़ी पुरानी हो चुकी है, इस वजह से ये हालत हो गई है. नाउ दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द बायोलॉजी. Sorry, this is the part 1 of the chemistry 12 and this is the part of the chemistry. Okay, now these are the books and one book which I मतलब आपकी सब तैयारी हो चुकी हो तो आप मस्ट रीड करिए दीज अरिहंत 31 ईयर नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. नाउ ये केमिस्ट्री की बुक है. 31 ईयर्स चैप्टर वाइज सोल्यूशन नीट केमिस्ट्री. इसमें हर चैप्टर के में इट इंक्लूड्स योर बोथ 11th क्लास एंड 12th क्लास दोनों के इसमें आपको हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे रखे हैं. आप चाहें तो इसे प्रैक्टिस करिए, वरना अगर आप लोग कोई कोचिंग को प्रेफर कर रहे हो, अगर आपके पास कोचिंग मटेरियल डेफिनेटली होगा तो उस कोचिंग मटेरियल में आपके पास जो मॉड्यूल्स होती हैं उनके क्वेश्चन यू मस्ट प्रैक्टिस दोज क्वेश्चंस. और उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं. आई थिंक एल की बुक्स में तो काफ़ी अच्छी तरह एम्स के अलग है एंड दीज आर ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस. तो आप प्लीज़ उन्हें प्रिपेयर किए. दीज आर वेरी मच गुड. और अब तो आई थिंक एम्स और नीट कंबाइन हो चुके हैं. सो यू मस्ट बी रेडी फ्रॉम ऑल द मेथड्स. मतलब आपको रेडी होना ही पड़ेगा. दैट इज़ मस्ट. सो गाइज दिस इज़ ऑल माई प्रिपरेशन स्ट्रेटजी. और कुछ चीज़ें मैं आपको और बताना चाहूँगी कि मतलब केमिस्ट्री इज़ लाइक अ सब्जेक्ट जिसमें थ्योरी भी है. तो थ्योरी मतलब आई थिंक इनऑर्गेनिक इज़ मस्ट. आप लोग को NCERT से तो पढ़ना ही है. उसके साथ साथ आप लोग न्यूमेरिकल पोर्शन के बारे में ध्यान से पढ़िए. यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट ऑल दैट. और प्लीज़ अपना फिजिकल केमिस्ट्री पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा अगर आप एक बायोलॉजी लवर हैं. मतलब अगर बिकॉज इट इज़ मस्ट. क्वेश्चन तो उसमें भी आनी ही है. सो आई थिंक NCERT इज़ बेसिक. मीन्स इट इज़ जस्ट द रूट. ये तो रूट है ही, इसे तो आपको करना ही है. उसके साथ साथ ये बुक्स और भी हैं, अदर स्टफ है, यू शुड प्रिफर दैम. और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं. सो यू मस्ट रीड ऑल ऑफ दैम. So this is all my preparation strategy about NEET, and I will show you the camera version at the last of my video. So this was all my tips to all the NEET aspirants, and I just want to wish you all the best for a bright future. I hope you will get your desired colleges, your dreamed colleges. So guys, please, if you really like my content, then please like and subscribe my channel, and that really gives me so much motivation. And thank you for watching my video. It means so much for me. And also you can follow me on Insta on Being Dental Doctor. Thank you. Okay, bye bye. So now guys, I am showing you the camera version of all those books. So these are the basic the textbooks of chemistry, all these. आई होप ये सब आपके पास होंगी. इसमें ना कुछ चैप्टर्स है इंपॉर्टेंट. लाइक 11th के पास आपका एस और प्ली ब्लॉक है, तो उसमें आप ऐसे शॉर्ट नोट्स बीच में बना के रखिए. यू कैन सी हियर दीज आर वेरी मच हेल्पफुल. यू कैन सी वेरी क्लियरली. काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं आपको अगर क्विक रिवीजन करना है लास्ट टाइम पे. मतलब
नीट के एग्ज़ाम यानी 13 सितंबर से थोड़े पहले मैंने यही सब चीज़ें रिवाइज करी थी। कुछ चैप्टर्स काफ़ी अच्छे लाइक हाइड्रोजन, आपके पास पी ब्लॉक एलिमेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट लगे साइड में लिख लीजिए। ये टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है टू नो द प्रॉपर्टीज़, किसकी रेडियस बड़ी है, किसकी छोटी, आयनाइजेशन, एंथैल्पी को ऑर्डर एंड ऑल दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, यू कैन सी हियर। और कुछ भी इंपॉर्टेंट लगे ना ऊपर लिख लीजिएगा, राइट। तो ये तो मेरे पास बेसिक NCERT की टेक्स्ट बुक्स हो गई। उसके साथ साथ हमारे पास 11th की केमिस्ट्री है, मॉडर्न ABC बाय डॉक्टर SP जौहर। ये बुक इसलिए हेल्पफुल है ना गाइज, आई कैन शो यू। यहाँ पे ना क्या होता है, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बीच बीच में दे रखे हैं और आपको ना क्वेश्चन करने का तरीका आ जाता है। वंस यू नो द बेसिक मेथड ऑफ क्वेश्चन यू कैन ईजिली इंक्रीज और स्पीड। कुछ इंपॉर्टेंट टफ एंड ट्रिकी प्रॉब्लम्स हैं, इनको ज़रूर देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं टू नो द मोस्ट ट्रिकी प्रॉब्लम्स एंड टू सॉल्व दैम, ठीक है। उसके साथ आपको यूनिट चेंज करना है एंड दीज आर सम ऑफ द बेसिक प्रोसीजर्स भी आने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें फिर लास्ट में ना एक कंपटीशन फाइल दी जाती है, इसमें कुछ कंपटीशन के नोट्स होंगे, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फार्मूला टू रिमेंबर एंड उसके साथ साथ हमारे पास कंपटीशन फाइल में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। दीज आर वेरी मच हेल्पफुल, मैंने देखिए आप सब सॉल्व किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। AIPMT के क्वेश्चन हैं एंड देन वी कैन सी आपके पास G मेन्स के क्वेश्चन है, आपके पास G एडवांस के क्वेश्चन होते हैं। सो दीज आर वेरी मच हेल्पफुल। ओके, सो दीज आर ऑल। ये हमारे पास 11th की 2 बुक्स हो गई, मॉडर्न ABC की 12th की 2 बुक्स हो गई। ये बुक काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे पास डॉक्टर अरिहंत की, ठीक है डॉक्टर। ओके, सो दिस अरिहंत टेक्स्ट बुक इज़ वेरी मच हेल्पफुल। इसमें चैप्टर वाइज 11th एंड 12th के हर केमिस्ट्री के चैप्टर के जो क्वेश्चन है एक समराइज्ड वर्जन में अलॉन्ग विद आंसर्स दे रखे हैं। तो आंसर्स को छोड़िए, आप पहले तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना ही सीखिए, दीज आर मस्ट। सो दिस